Euler's-Tocent function, an important function in number theory. This is also known as Euler's phi function. What we mean by Euler's phi function? Let n be a positive integer, then number of positive integers which are less than 2n and co-prime to n is called Euler's phi function for n. N is an integer. It means if phi n equals to k counts 1, 2, 3 up to n, where GCD of k and n equals to 1. Means k is a value which is relatively co-prime to n. So how we find Euler's phi function for any integer? There are basic three methods. First method, if n is prime, if n is any prime number, then phi n equals to n minus 1. Simple. We understand it by taking an example. Let n equals to 13, then phi 13 will be n minus 1, simply n minus 1. So 13 minus 1 equals to 12. So phi 13 equals to 12. Let's take another example. Let n equals to, if we take it 19, then phi 19 equals to n minus 1, means 19 minus 1 equals to 18. There are 18 numbers less than 19 which are relatively co-prime to 19. और हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 up to 18. All numbers are relatively co-prime to 19. Okay. Now second method, if n is not a prime number, means n is a product of distinct prime number, or we can say n is composite number. N is composite number. If n is composite number, let's take n equals to p q r, then phi n, Euler's phi function will be here if GCD p q r are prime numbers, or we can say GCD of p q r equals to 1, means they are relatively co-prime, then we can write phi n as phi p into phi q into phi r. These are प्राइम नंबर्स, पी क्यू आर प्राइम नंबर. सो ये फर्स्ट मेथड बन जाता है. फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग फिर हम इसका क्या करेंगे, वी कैन राइट 5 पीज पी माइनस 1 मल्टीप्लाई क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई आर माइनस 1. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इन इट बेटर. If 521 means we can write 21 as product of 3 into 7, product of two prime numbers. 521 equals to 3 into 7. Okay. Now 3 into 7 are relatively co-prime, so we can write 3 into 7. इसको हम 3 into 7 टू प्रोडक्ट्स. अब ये दो प्राइम नंबर्स है. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1, एंड 7 को वी कैन राइट 7 माइनस 1. सो इट विल बी 2 into 6 मीन्स 12. देर आर 12 numbers which are relatively co-prime to 21. अगर हम नंबर्स लिखें तो क्या क्या हो जाएंगे, 1 relative co-prime to 21, 2 actually 1 is relatively prime to every integer, because if we take GCD of 1 and any we can say any integer, it will be 1. Okay. 3 is not relatively co-prime to 21 because 3 is a factor of itna. Next 4 5 6 is also not relatively co-prime with 21 because 6 and 21 have a common factor 3. 6 7, of course 7 and 21 are not relatively co-prime. Next 8 9
9 भी 21 से रिलेटिवली को प्राइम नहीं है। 10, 11, 12, 12 भी नहीं, बिकॉज 12 हैज़ एन 3 एज एन फैक्टर विच इज़ ऑल्सो 20। 21 और 12 में 3 एक कॉमन फैक्टर है। आफ्टर 12, 13, 14, 14 भी रिलेटिवली को प्राइम नहीं है 21 के साथ, बिकॉज 14 एंड 21 हैज़ ए कॉमन फैक्टर 7। 15 भी नहीं है, 15 हैज़ 3 एज ए फैक्टर। 16, 17, 18, अगेन 18 नहीं होगा, बिकॉज 21 और 18 में 3 एक कॉमन फैक्टर है। 19 प्राइम नंबर है एंड 20। तो 4, 8, 12, 12 there are these 12 numbers are relatively co-prime to 21। अब हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। इफ़ n इक्वल्स टू 30 देन हमें 530 फाइंड करना है। 530 को हम टू प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कर सकते। टू नहीं, आई थिंक 3। 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2, 3, 5 रिलेटिवली को प्राइम है, तो हम इनको राइट कर सकते हैं 5 2 इंटू 5 3 इंटू 5 5। अब हम इनके फंक्शंस के वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 2 प्राइम नंबर है तो इसका होगा 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 मीन्स 8। देयर आर 8 इंटीजर्स which are relatively co-prime to 31। ओके, और इनको हम जैसे ऊपर वाले ऊपर जिस एग्जांपल में फाइंड किया सेम उसी तरह से हम नीचे भी इनको फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट थर्ड मेथड नंबर थर्ड क्या कह रहा है, प्राइम हो गया रिले और हमारा कंपोजिट हो गया। अब हमारा थर्ड मेथड में कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो है कि पावर ऑफ ए प्राइम नंबर। इफ़ n इज़ ए नंबर ऑफ प्राइम्स पावर, मतलब एक प्राइम नंबर की पावर होगा। सपोज अपने पास है लेट n इक्वल्स टू एक प्राइम नंबर p रेज टू पावर x। हमारे पास n एक नंबर इस टाइप का है, n इक्वल्स टू p रेज टू पावर x, देन फाई n विल बी p रेज टू पावर x माइनस p रेज टू पावर x माइनस 1। पावर को हम 1 से लेस देन कर देंगे। ओके, we will understand it by taking an example. Let's take an example. Let n equals to 2 की power suppose 3 means n equals to 8, then what will be phi n equals to 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, एक पावर लेस देन कर देंगे, देन 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4 मीन्स 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। देर आर 4 नंबर्स विच आर रिलेटिवली co-prime to 8। Let's find number 1. Obviously 1 is relatively co-prime to all integers. 2 is not relatively co-prime to 8. 3, definitely 3 is relatively co-prime to 8. After 3 4 is not relatively co-prime to 8. 5 is also relatively co-prime to 8. Next 6 is not relatively co-prime to 8. Next is 7 is relatively co-prime to 8. So these are 4 numbers which are relatively co-prime to 8. Now let's take another example. Let n equals to 100। ओके, कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट मतलब वी कैन से 4 इंटू 25, और 4 इंटू 25 तो ये है पावर ऑफ प्राइम नंबर्स भी बन रहे हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 एंड 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 रेज टू पावर 2। तो ये प्राइम पावर्स भी है, कंपोजिट नंबर भी हैं, तो इनका हमें कैसे निकालना होगा 5 फंक्शन, यूलर्स फंक्शन, वी कैन से 5 फंक्शन। तो 100 वी कैन राइट 500 को हम
टू रिलेटिवली कोप्राइम के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, मीन्स 5 4 इंटू 25। अब ये इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 5 4, ये दो रिलेटिवली कोप्राइम नंबर है तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इंटू 5 25। अब हमारा जो ये मेथड थर्ड है उससे बढ़ जाएगा कि नंबर ऑफ प्राइम पावर्स, ये प्राइम पावर्स के नंबर हैं। देन वी कैन राइट 5 4 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको अब हम इस मेथड से करेंगे। 5 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 मीन्स इसका आयलर फंक्शन क्या होगा, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, एक पावर लेस देन करके। 2 की पावर 2 4 माइनस 2। ओके, नेक्स्ट 5 की पावर 2 25 माइनस 5, 25 माइनस 5। So 2 into 20 equals to 40. Means there are 40 numbers which are relatively co-prime to 100 and less than 100. Okay. इसका एक और मेथड भी है जो जनरल मेथड हमें काउंट दिया गया है कि सपोज हम इसको एक और मेथड डिफाइन कर सकते हैं। फाई एन आपके पास लेट फाई एन एक्चुअली लेट एन इज़ ए नंबर लाइक दैट p1 की पावर सपोज वी कैन टेक ए, ये p1 q1 की पावर b और q3 ले सकते हैं। ओके, q3 की पावर c। 3 प्राइम नंबर्स हैं और उनकी पावर्स दी हुई हैं, तो इनका आयलर फंक्शन क्या होगा, फाई एन इक्वल्स टू एन इंटू 1 माइनस p1 1 अपॉन p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सॉरी यहाँ मैंने q1 और q3 डिफाइन किया था, तो q1 एंड q3। ओके, इनकी पावर इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल जो अपने ऊपर एग्जाम्पल लिया उसी से इसको समझते हैं। 500 विल बी 500 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू एक प्राइम नंबर हमारे पास 2 था तो इसको हमने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन 2। सेकेंड प्राइम नंबर हमारे पास 5 था तो इसको हमने राइट किया 1 माइनस 1 अपॉन 5। देन 100 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2। 1 माइनस 1 बाई 5 इक्वल्स टू, हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन 5। ओके, लेट्स कैंसिल आउट, जो हमारा कैंसिल हो रहा है 2 इंटू 5 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गया 40। तो दीज टू मेथड्स आर सेम, हम चाहो तो इससे कर लेंगे और अदरवाइज इससे कर लेंगे। अगर ये याद रहता है तो हम इससे, अदरवाइज ऊपर वाला भी अपना बेस्ट था।